آج کافی ساری اہم خبریں ہیں، جیسا کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں جہاں پر ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے، وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ تقریباً سیدھا گتھم گتھا ہو گئے ہیں یورپین لیڈرز کے ساتھ۔ دوسری طرف کینیڈین پرائم منسٹر کھل کر یورپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تیسری طرف جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے وہ اب کھل کر حملے کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کے اوپر اور صدر ٹرمپ ان کے اوپر۔ مطلب دو بدو لڑائی شروع ہو گئی ہے، گتھم گتھا والی صورتحال ہے۔ اگلے 1-2 دن جو ڈاووس میں صدر ٹرمپ ہیں خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر تو 2 دیوانے نہیں بلکہ کئی دیوانے مل کر بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں پر بنے گا کیا۔ چوتھی طرف پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں فارم 47 کے، وہ بھی ڈاووس پہنچے ہیں۔ ہم نے بھی غزہ والے معاملے پر دستخط کرنے ہیں۔ یاد کیجئے ڈان نیوز پیپر جو ہے وہ اب سے 1 مہینہ پہلے یہ خبر دے چکا ہے کہ 4000 کے قریب فوجی ہم نے جو ہیں وہ 3500 سے 4000 کے قریب فوجی ہم بھیجنے کو غزہ میں تیار ہیں۔ یہ ڈان کی خبر تھی آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے یا 1 مہینہ پہلے۔ تو اس سب پر ہم بات کریں گے، ڈاووس میں کیا ہوگا، یورپ اور صدر ٹرمپ کے درمیان میں کیا ہوگا، اور کراچی کے اندر جو پلازا جلا ہے اب وہاں سے درجنوں لاشیں جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں، وہاں بھی صورتحال بہت خراب ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اڈیالہ جیل کے سامنے عمران خان کی بہنوں کے اوپر بہت ہی شرمناک قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ کل منگل والے دن ان کی ملاقات کا دن تھا، سارا دن وہ بیٹھی رہیں، وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوئی، ورکرز بھی تھے، کل ورکرز کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ شام کے وقت ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں وہ واپس جانا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت انہوں نے آپریشن کیا اور اس آپریشن کے اندر عمران خان کی بہنوں کے اوپر تشدد کیا گیا، خصوصی طور پر جو ہمارے سامنے رپورٹس آ رہی ہیں وہ نورین خانم صاحبہ کے اوپر۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے نورین خانم صاحبہ کے بارے میں کوئی خصوصی ڈائریکشن ہے، کیونکہ یہ دوسری بار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ باقی کسی پہ تشدد نہیں ہوتا، سبھی بہنوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن خصوصی طور پر نورین خانم صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پچھلی بار بھی انہیں سڑک پر گرا کر انہیں گھسیٹا گیا تھا بالوں سے پکڑ کے، اور بزرگ ہیں وہ، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کی گئی تھی۔ اس دفعہ بھی جو گراؤنڈ پر وکلا ہیں، خواتین اور ورکرز ہیں، وہ سب بتا رہی ہیں کہ نورین خانم صاحبہ کو دھکے دیے گئے، زمین پر پھینکا گیا، ان کا دوپٹہ کھینچ لیا گیا، انہیں ظاہر ان کے بازو مروڑے گئے، ایک دفعہ پھر انہیں چوٹیں لگانے کی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں پر جو ورکرز تھے جیسے کہ نجم ایک بہت ہی عمدہ ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں اٹھایا گیا، وکلا کچھ جو ہیں وہاں پر ان کو بھی اٹھایا گیا، وہ بھی غائب ہیں۔ تو یہ ایک وہاں پر فسطائیت جو ہے جو عاصم منیر صاحب کے احکامات سے ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قید میں نہیں ہے، عمران خان کسی قانون کے تحت جیل کے اندر نہیں ہے، وہ اغوا ہوئے ہیں اور وہ مغوی ہیں عاصم منیر کے۔ عاصم منیر اور ان کے ساتھی جرنلز نے عمران خان کو اغوا کر رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ بہت سارے جو ورکرز ہیں، ہم نے بھی گزارش کی تھی، آپ لوگ بھی کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے دوست ان سے گزارش کر رہے تھے کہ یہ وہاں باہر پہنچیں، اور اس کے بعد جو کچھ رات ہوا ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک شرمناک قسم کی ایپیسوڈ ہے جو ہر ٹیوزڈے کو ہوتی ہے، اور یہ ملاقات نہیں کروا رہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، دونوں کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اور جب بہنیں، خاندان اور ورکرز باہر احتجاج کرتے ہیں تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، جس کی جتنی مذمت کریں، جس کی جتنی بھی زیادہ جس پر لان تان اس رویے پر بھیجیں وہ کم ہے۔ اچھا، اب یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس سب سے نپٹ رہے تھے، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو اچانک جو لونڈا لپاڑا جی ہیں ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ انہوں نے اس میں ڈائریکٹلی، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دن پہلے جب وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ان کی سلیکٹو غیرت جاگی تھی، اور وہ بغیرت اور بے شرم کا لفظ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، یا جن جن لوگوں نے مریم صاحبہ کی وہ جو شادی کے اوپر ان کی حرکتیں تھیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی پروجیکشن کی، جس طریقے سے انہوں نے ایک بالی ووڈ سٹائل اپنا پروفائل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، اس پر ان کی سلیکٹو غیرت جاگی، اور انہوں نے مجھ سمیت جن جن لوگوں نے بھی اس پر بات کی تھی ایشو پر، ان کو بے شرم اور بغیرت کہا۔ ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے، اس کی چبن شاید زیادہ ہو گئی۔ پڑھے لکھے کم ہیں لگتے ہیں آپ کو، کیونکہ اسکولنگ اچھی ہے پاکستان میں، یہ بھی رولا ہے، اسکول بہتر ہو تو انگریزی تھوڑی سی بہتر پروننسیشن سے آپ بول لیتے ہیں۔ ویسے لونڈا جی کا حال تو وہاں بھی پتلا ہی ہے، لیکن اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں۔ میرا خیال لونڈا جی نے صرف زیادہ سے زیادہ بی اے کیا ہوا ہے، ملک سے باہر تو کہیں پڑھنے نہیں گئے، اسی لیے ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہاں پر کون لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے زیادہ وہ بے وقوف ہیں اس معاملے میں۔ لیکن پہلے انہوں نے جو چیلنج کیا، وہ جب اڈیالہ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اس وقت مجھے کسی نے ان کی ویڈیو بھیجی، جب وہ میں نے سنی تو اسی وقت جو ہماری ٹیم تھی اس سے ہم نے رابطہ کیا۔ یہ پہلے ذرا لونڈا جی نے جو ساڑ پھکا، جو انہوں نے ایک اپنی نفرت کا اظہار کیا، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، وہ تو جب تک اللہ کی ذات نہیں کرے گی ہم ڈسکریڈٹ نہیں ہوں گے، یا ان کی منظوری نہیں ہوگی تو آپ جیسے جتنے بھی دوست ہوں گے وہ ڈسکریڈٹ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال لونڈا لپاڑا جی نے کہا کیا، یہ پہلے سنیے۔ کہتے ہیں جی کہ منگل اڈیالہ پلان پنجاب اور کے پی کی پارٹی قیادت کو لسٹیں جاری کرنی ہوں گی، ہر ٹکٹ ہولڈر کا آفس نمبر بھی دیں تاکہ عوام ان کو فون کر کے یاد کروا سکیں کہ انہوں نے اڈیالہ آنا ہے، اور جو پھر بھی نہ آئے اس کا نام پبلش کیا جائے، لگاتار 3 بار جو نہ آئے اس کی رکنیت معطل کر دی جائے۔ اور دوسرا ٹویٹ پھر اس نے کہا جی ریمائنڈر، آج اڈیالہ جیل کے سامنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو پہنچنا چاہیے، بھلے صرف 5 لوگ ساتھ لے کر پہنچے، خود امریکہ بیٹھے، خود نہیں آنا، باقی ٹکٹ ہولڈر آئیں اور اپنے ساتھ 5 بندے لے کر آئیں۔ چلیں میں شہباز گل صاحب سے ویسے پوچھتا ہوں، تو شہباز گل صاحب آپ خود تو ہے نہیں پاکستان کے اندر، آپ کے فیملی ممبرز کتنے گئے وہاں پہ؟ وہ تو یہیں پہ ہے نا، وہ تو پاکستان کے اندر ہیں، کیا وہ گئے وہاں پہ؟
یا آپ نے خود چلیں آپ ذمہ داری لے لینا, آپ یہی بتا دیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بھیجا, جو آپ کا کوئی سرکل آف فرینڈز ہوگا, ریلیٹیوز ہوگا, کوئی ظاہری بات آپ کا تعلق اگر پی ٹی آئی سے ہے, وہ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اب ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تو ظاہری بات بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا پی ٹی آئی کے اندر. تو لیکن آپ کے چاہنے والے تو ہوں گے نا, آپ کے جاننے والے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو اڈیالہ جیل بھجوایا, آپ بھی مارک کر کے بتا دیں. وہاں پہ آپ کے بہت سے وہاں پہ لونڈے لپڑے آتے ہیں نا, وہاں پہ انہیں کو پن پوائنٹ کروا دیں گے یار یہ بندے میں نے بھجوائے. تو باہر سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ بڑھ کے مارنا بہت آسان کام ہے. سن لیا آپ نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گل صاحب آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے جیسے میں شوق سے بیٹھا ہوں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں مہمانداری میں آیا ہوں, اور جس طرح انہوں نے اپنے گلے میں عاصم منیر کا پٹا پہن رکھا ہے, معذرت ان لفظوں پر, اگر آپ اتنی دور نہ جاتے تو میں آپ کو یہ نہ کہتا, جس طرح انہوں نے اپنے گلے میں مریم نواز کا پٹا پہنا ہوا ہے, اور وہ سب نے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھا جب انہوں نے انگلی ایسے ایسے کر کے ان سے کٹوایا تھا کہ یہ بھی کاٹ دو یہ بھی کاٹ دو, اور اگلے دن انٹرویو میں وہ سب کچھ کٹا ہوا تھا. پھر ان کو کہیں سے بھنک پڑ گئی کہ ان کی بات چیت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے کہ مریم نواز نے یہ سب کچھ ان سے کٹوا دیا. تو انہوں نے آ کر اپنے ٹاک شو کے اوپر اپنے اس ولاگ پر کہا کہ میں کرتا ہوں صحافت ڈنکے کی چوٹ پر. کسی نے مجھے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کاٹ دیں, میں نے کہا کسی کا باپ بھی یہ نہیں کٹوا سکتا, یہ چلے گا. حالانکہ وہ کٹ چکا ہوا تھا اور چلا بھی نہیں تھا, یہ صرف کور اپ کر رہے تھے. ان کو یہ امید نہیں تھی کہ ویڈیو لیک ہو جائے گی. پھر ان کی وہ ویڈیو لیک ہو گئی جس میں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کاٹ دو یہ بھی کاٹ دو یہ بھی کاٹ دو. اس کے بعد ظاہر ہے ان کے گلے میں سب کو نظر آ گیا کہ کس کا پٹا پہنا ہوا ہے. یہ منصور علی خان ہے. کسی کے باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے ڈبیٹ کرے کہ میں نے کیا سوال کرنا اور کیا نہیں کرنا, یا مجھے کوئی پروف کر کے آ کے دکھائے. رکو ذرا صبر کرو. اب ہم کر سکتے ہیں ریکارڈ, دیٹس فائن. ایک سیکنڈ, سوال کیا ہے؟ توشہ خانہ کے والے آپ کا نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. کیا کسی کے باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے ڈبیٹ کرے کہ میں نے کیا سوال کرنا اور کیا نہیں کرنا. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی ان یہ 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے, بند کر دیں ذرا پلیز. کہ مجھے کوئی پروف کر کے آ کے دکھائے. میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں ہیں, میرے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹیل, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں, مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا. ہم نے صحافت کی ہے اس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ. مجھے آنیسٹلی اس کا نہیں پتا, میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں. آپ چیک کر لیجیے گا, چیک یہ پلیز کائنڈلی ڈونٹ وری. یہ منصور علی خان ہے. آپ کا نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اب لونڈا جی اگر میں وہ پٹا پہن لوں تو میں بھی پاکستان میں رہ سکتا ہوں, بہت سارے لوگ رہتے ہیں, میں بھی آرام سے اپنے گھر میں رہوں گا, میں بھی آؤں گا جاؤں گا, ملک سے باہر آؤں گا جاؤں گا. آپ کی طرح میں بھی وہاں پر کاروبار بھی کر سکتا ہوں, کوئی نوکری بھی کر سکتا ہوں, میں ساتھ اپنا ویلاگ بھی کر سکتا ہوں. مین چوپڑیاں نالے دو, جیسے آپ کے لیے چوپڑیاں نالے دو ہیں نا, مین آپ چینل پہ بھی نوکری کرتے ہیں, ویلاگ بھی کرتے ہیں, اور آپ ہر طرح کی کاروائی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے 2 پٹے گلے میں ڈال رکھے ہیں. اب میں پٹا ڈلوانے سے انکاری ہوں. اگر تو میں پٹا ڈال لوں تو میرے پاس ساری وہ سہولتیں. آپ یہ غور کیجئے کہ ملک سے باہر بھی آپ ذرا سا پٹا, وہ کہتے ہیں گلے میں بھی نہ ڈلوائیں, پاؤں میں ڈلوا لیں, ہاتھ میں ڈلوا لیں, چلیں پٹا نہیں ڈلوانا, کچھ چھلا ہی ڈال لیں ہاتھ میں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے کے تنقید نہ کریں. آپ کے جو پاسپورٹ بلاک ہیں, جو آپ پر سفری پابندیاں ہم وہ ختم کر دیتے ہیں. بہرحال انہوں نے چیلنج جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا ہمیں کہ آپ باہر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ کے کوئی لوگ وہاں جاتے ہیں. اچھا وہ بھی میں بتاتا ہوں جاتے ہیں کہ نہیں. مسئلہ یہ کہ ان سے کوئی پوچھے کہ جب نواز شریف اور مریم نواز ملک سے باہر تھے اور وہ وہاں سے اپنے ورکرز کو کہتے تھے کہ نکلیں احتجاج کریں, تو کیا یہ سوال یہ تب ان سے پوچھتے تھے؟ اب یہ کہیں گے آپ نواز شریف تھوڑی ہیں. بالکل میں نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نواز شریف ہوں یا میں مریم نواز ہوں. واقعی میں تو ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میں اشرافیہ میں سے تو نہیں ہوں جنہوں نے پٹا آپ کے گلے میں ڈالا ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا سابق چیف آف سٹاف رہا ہوں یا ان کا ساتھی رہا ہوں. اب وہ تو جیل سے پیغام دے نہیں سکتے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو پیغام ان کا ہوگا وہ میں یہاں سے دوں گا. اب جیسے میں نے کہا کہ اگر میں گلے میں پٹا ڈلوا لوں تو پھر تو وہاں کام کروں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں آپ جیسوں کے, ان کی منجی پیڑی ٹھوکوں, انہیں ایکسپوز کروں, سب کو بتاؤں کہ یہ ایکسرسائز تو کرتے ہیں لیکن اندر سے یہ مامے مودے ہیں. جم میں ان کا جسم تو ہے, یہ برائلر مرغے کی طرح ہیں, یہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن اندر ان کے ککھ نہیں ہے. یہ یہاں سے تو تکار کر سکتے ہیں, اونچا بول سکتے ہیں, لیکن اندر ان کے کوئی کھاتا نہیں ہے. عمران خان کی بہنوں کو جب عاصم منیر کے احکامات پر وہاں پر بدتمیزی کی جاتی ہے, تشدد کیا جاتا ہے, تو بغیرت کا لفظ تو دور کی بات ہے, یہ بے شرم ان کو نہیں کہہ سکتے. لیکن واپسی میں سوال ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے ورکرز کو کہا ہے تو کیا آپ نے اپنے لوگ وہاں بھیجے ہیں؟ جب ہمیں ان کا یہ ویڈیو, کیونکہ ظاہر ہے کل انہوں نے شام میں ولاگ کیا تو وہ 2-3 گھنٹے میں مجھے ویڈیو ملی, اس وقت وہاں وہ سب تشدد چل رہا تھا. ہم نے اپنی ٹیم سے رابطہ کیا کیونکہ ہماری ٹیم ہر دفعہ اللہ کا شکر ہے وہاں پر حاضر ہوتی ہے. تو میری ٹیم نے کیا ریکارڈ کیا, اس میں ہم چہرے دھندلے رکھیں گے, آواز بھی ہم نے تبدیل کی ہے, جان بوجھ کے کی ہے, پہلے ہی بتا دیں, کیونکہ انہوں نے جن کا پٹا پہنا ہوا ہے خصوصی طور پر میری ٹیم کو وہاں گرفتار کیا جائے گا. میرے جو لوگ ہیں وہ بیچارے غریب گاؤں کے دیہات کے لوگ ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. ان کی مائیں جو ہیں بعد میں انہیں بددعائیں دیں گی, ظاہر ہے پٹے ڈالنے والے لونڈے لپاڑوں کو, لیکن ان بچوں کا نقصان ہوگا. اس لیے میں نے حفاظتی طور پر ان کی آواز بھی تھوڑی تبدیل کی ہے اور ان کی جو ہے وہ شکل کو بھی دھندلا کیا ہے. یہ ہمارے متعدد لوگ, میں نے تو کوئی 6-7 لوگ ہی کہے تھے, لیکن لڑکوں کی مہربانی ہے کہ زیادہ لڑکے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کل ہماری ریکویسٹ کے اوپر. جو ہماری ٹیم ہے, میری ٹیم ہے کہہ لیں, آپ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम अडियाला के बाहर मौजूद हैं। पुलिस की फस्तानियत की ये सूरत हाल है कि पहले जहां एहतजाज की कॉल के लिए हमें परमिशन दी जाती थी, अब कई किलोमीटर दूर जो है हमें परमिशन दी जाती है। उसके बावजूद तशद्दुद वगैरह भी पुलिस करती है, लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और एक लौंडे लपाड़े जिसने वीडियो बनाई है कि शहबाज गिल जो है अमेरिका में बैठ के पैसों की खातिर जो है वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनकी टीम मौजूद नहीं है। मैं ये वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ, इस टाइम मिड नाइट का वाक़या है जहाँ तशद्दुद के बाद बहुत सारी टीम जो है या PTI के कारकुनान अभी वापस जा चुके हैं। आज अभी इस वक्त भी जहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं नजर आ रहा, के अंदर शहबाज गिल की टीम के अंदर हम कुछ मौजूद आपको कैमरे में नजर आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं। तो ये आप लोगों के नोटिस में लाना था कि हम अमेरिका के अंदर बैठ के सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि टीम फिजिकली यहाँ पे मौजूद है अडियाला के बाहर, और हम हमेशा आते रहे हैं और हमेशा आते भी रहेंगे। सुन लिया आपने। अच्छा, आप ये कहेंगे कि गिल साहब इनकी तो हमें शक्ल नजर नहीं आती, ये वहां आए कि नहीं। आप ऐसा करें कि किसी इंडिपेंडेंट सहाफी आपकी तरह के नहीं, आप तो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आप तो छुन छुन मियां हैं आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों के, आपने तो पट्टा डाला हुआ है गले में, आपके ऊपर तो ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। साकिब बशीर, या आप फिर कहेंगे आपने अपनी मर्जी का बंदा चूज कर लिया। कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिसकी कोई मोरालिटी है, एथिक्स है, जिसे जर्नलिस्ट एट लार्ज जो है वो समझते हैं कि वो एक बेहतर जर्नलिस्ट है, आमिर मतीन साहब कह लें, हामिद मीर साहब कह लें, आप किसी एक बंदे को वहां पर भेजें। मेरी टीम हर दफा आपको मिलेगी और बताएगी कि हम शहबाज गिल की टीम है और वो हमारे बड़े भाई हैं और उनके कहने पर हम यहां पर आए हुए हैं। अच्छा, अब ये लौंडा लपाड़ा जी को ये जुकाम होता क्यों है, मैं बार बार ये ऐसा क्यों सोचते, मैं बताता हूं। इनका जो मुखबर है ना, वो अभी हाल ही में हमारी पार्टी में से एक इनका मुखबर है, हाल ही में दुबई में मौजूद था। वो कल को जब खान साहब ने जेल से रहा होना है तो उसने बताना है कि मैंने बड़ी कुर्बानी दी है खान साहब, हालांकि वो दुबई में सैरें कर रहे थे। वो इनका है मुखबर। अब होता क्या है, क्योंकि इन्होंने कभी फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की हुई, मतलब जैसे नुसरत जावेद साहब ने फील्ड रिपोर्टिंग किया, भले उनसे मेरी कई दफा अदावत भी रहती है, या आप गौर कीजिए जिस तरीके से अहमद मीर ने की हुई है, या दूसरे लोग जो फील्ड रिपोर्टर होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के मैकेनिज्म का बहुत अच्छी तरह से पता होता है। इन भाई साहब का मसला ये कि पहले फ्रिजें बेचते थे, उसके बाद टेलीविजन के ऊपर खबरें पढ़ते थे, फिर ये यहां पर आके व्लॉग करना शुरू हो गए। इन्हें ये नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डायनामिक्स क्या होते हैं। अब ये करते क्या है, PTI के अंदर, जाहिर है मैं तो ग्रुप बना के नहीं खेलता, ना मैं लाहौरी ग्रुप का हिस्सा हूं, ना पंजाब के ग्रुप का, ना KPK के ग्रुप का, मैं तो लोन वुल्फ हूं, मैं तो अकेला ही लड़ता हूं। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन इमरान खान के साथ था। 5 साल मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, मैं सीधा इमरान खान के साथ काम करता था। जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था तब भी सारे ग्रुप मेरे से तंग होंगे, और जब मैं स्पोक्स पर्सन था तब भी। अब इनको मिलते हैं डिफरेंट किस्म के, मैंने जैसे कहा एक तो इनका मुखबर है, मुझे पता है, जो पिछले दिनों दुबई गया हुआ था, इनको समझ आ गई मैंने किसकी बात की है। तो वो जो इनके मुखबर है वो ये बताते हुए, गिल साहब तो कोई बंदे नहीं बेचते, उनके पल्ले तो कुछ नहीं है, वो तो फारिग हैं सिर्फ, वो तो बात ही नहीं है। अब अगर ये फील्ड रिपोर्टर कभी रहे हों, इन्होंने रिपोर्टिंग की हो, जैसे अरशद शरीफ शहीद थे या दूसरे लोग जिन्होंने फील्ड पर रिपोर्टिंग की होती है, तो उन्हें पता होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो एक दूसरे के मुखालिफ लोग होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल जीरो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जीरो है। मतलब मैं अगर कहूं कि आप बिल्कुल जीरो है मंसूर साहब, तो नहीं, मेरे कहने पे आप बिल्कुल जीरो तो नहीं होंगे। आप व्लॉग करते हैं, आपको 2-2.5 लाख 3 लाख कभी ज्यादा भी लोग देखते हैं, तो मेरे कहने पे आप जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से सियासत में लोग जो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल जीरो, इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो अब ये उस बात को पकड़ के चल पड़ते हैं, और क्योंकि कोई बेस नहीं है, ना एजुकेशन है, ना सुपीरियर ट्रेनिंग है, वहां खबर पहले फ्रिजें बेची, फिर खबरें पढ़ी और फिर सीधा व्लॉग शुरू कर दिया। तो उनको लगता है कि ये जो जासूस ने मुझे बताया है ना, ये जो मुखबर ने बताया है, गिल साहब के पल्ले तो कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया काम उनका। तो ये वैसा ही तज्जिया आपके सामने रख देते हैं। दैट इज अ फ्लॉ। इसीलिए इमरान खान बार बार एक आयत बताया करते थे, अल्लाह मियां का फरमान बताते थे हम सबके लिए, कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि उसके साथ इंसाफ ना कर सको। अच्छा, अब बात कंक्लूड करते हैं। आपने हमें चैलेंज किया था कि आप जरा दिखा दें आपकी वहां टीम जाती है कि नहीं। हमारी टीम वहां जाती है, और ये जो लोग आज गए हुए थे, कोई भी इंडिपेंडेंट रिपोर्टर अपने व्लॉग में बता दें कि फलां इंडिपेंडेंट है। ये जो मेरी टीम होती है उनसे मिल लेगी, और तमाम इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स को पता होगा कि हमारी टीम वहां हर दफा पहुंचती है। हाँ, मैं ये झूठ नहीं बोलता आपके सामने कि 50 बंदे पहुंचते हैं, कई दफा 5 होते हैं, कई दफा 7 होते हैं, कई दफा 3 भी होते हैं, लेकिन लोग जरूर पहुंचते हैं हमारी तरफ से, और हर दफा मेक श्योर करते हैं कि हमारे लोग वहां पर मौजूद हों। हाँ, मेरे लोग जो है वो बेचारे डंके की चोट पर कह नहीं सकते कि हम शहबाज गिल के साथी हैं, क्योंकि आप अपने मीडिया में पूछ लें, किसी से पूछ लें, बड़े से बड़े नाम से पूछ लें, छोटे से छोटे नाम से पूछ लें, हमारा तो आजकल कोई फोन नहीं ले सकता। एक बहुत बड़े सहाफी पिछले दिनों अमेरिका आए, बड़े सहाफी थे, उन्होंने मेरे से फोन पे, बहुत मुतबर सहाफी हैं, मैं उनका एहतराम भी बड़ा करता हूं, उन्होंने कहा आपसे मुलाकात करने को दिल करता है मंसूर साहब, आपसे बहुत बड़े सहाफी हैं। वो मैं तजर्बे में कह रहा हूं, आपको डाउनग्रेड नहीं कर रहा, और नाम में भी और इंपैक्ट में भी। उन्होंने कहा आपसे मिलूंगा तो वापस पाकिस्तान मसाइल बनेंगे, आपके साथ मिल नहीं सकता, लेकिन आपको सलाम कहना था, इंशाल्लाह दिन अच्छे होंगे तो आपके साथ मुलाकात करेंगे। अब हम तो इस वक्त रांदा दरगाह हैं, हम तो इस वक्त एग्जाइल कहना है, जो भी आपने कहना है उस हालात में। तो अब अगर मेरी टीम वहां बताएगी, माथे पे लिखेगी कि शहबाज गिल, तो जिनका पटा आपके गले में आपने पहना हुआ है, वो उनको खुसूसी तौर पर बेचारों को मारपीट करेंगे, और वो आम घरों के, गरीब घरों के, या मिडिल क्लास घरों के, या लोअर मिडिल क्लास घरों के वो नौजवान हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ बने। मैं उनका पहले ही शुक्रगुजार हूं कि वो मेरी रिक्वेस्ट पर वहां तशरीफ लेकर जाते हैं। खैर, ये बड़ी लंबी हो गई बात, क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया था। असल चुभन वो थी जो हमने पिछले दिनों कहा था। अब हमने तो आपका चैलेंज मंजूर कर लिया, और अगली दफा का भी मंजूर, उससे अगली दफा का भी
मंजूर, आप एक इंडिपेंडेंट 1 या 2 जर्नलिस्ट दे, हमारी टीम हर दफा मिलेगी। इंडिपेंडेंट बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उनको आप पकड़वा देंगे, कोई इंडिपेंडेंट होगा तो उनकी मुखबरी नहीं करेगा। अब आप आइए, जो हमने आपको चैलेंज किया था, अब आप जवाब दीजिए उसका कि आप यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ने वाले जनरल बाजवा को कब बेशरम या बगैरत कहेंगे, क्योंकि आप, हमारी पार्टी, हमारे लोगों के लिए बेशरम और बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यास्मीन राशिद की गाड़ी सबसे पहले जनरल बाजवा ने तड़वाई थी, आप उनको मिलने भी जाते हैं, उनके पास चाय भी पीते हैं, गप्पे भी लगाते हैं। आप अपने शो पर उन्हें कब इस बात के ऊपर बेशरम और बेगैरत कहेंगे? उसके बाद जिले शाह के साथ जो हुआ, उसके बाद अरशद शरीफ शहीद के साथ जो हुआ, उसके बाद खतीजा शाह से लेके तमाम लोगों के साथ जो कुछ हुआ, आप तो वैसे भी बड़े फेमिनिस्ट बनते हैं, खवातीन के हकूक के बड़े आप अलंबरदार बनते हैं, लेकिन वो आपकी सिलेक्टिव गैरत सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के ऊपर शुरू होती है और खत्म हो जाती है, जिनका पट्टा आपने पहन रखा है। तो आप ये जो मौजूदा साहब हैं, जो बैठे हुए हैं 1, 2, 3 या 4 लोग, इनमें इनको कब बेगैरत कहेंगे? और जो पिछले गुजर गए थे उनको कब कहेंगे? और अब आपने वादा, हम तो बेगैरत किसी को नहीं कहते, हम तो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, हम आपको भी नहीं कहते। हालांकि मुझे हमेशा से लगता था कि जो ये पट्टे शट्टे पहनते हैं वो कमजोर से लोग होते हैं। फिर अभी एक इंडियन, माजरत है इस बात के ऊपर, मैं आपको नहीं कह रहा, आपने गुस्सा नहीं करना, लेकिन इंडियन एक सोप आया था या सीरीज आई थी अभी, हीरा मंडी के नाम से, आपने नेटफ्लिक्स पर जरूर देखी होगी। उसमें मैंने पहली दफा देखा कि जो हीरा मंडी के अंदर भी कई लोग होते थे, वो भी जुस्से में बड़े तगड़े होते थे, मतलब कोई ऐसे नरमो नाजुक नहीं होते थे। तो जुस्सा तगड़ा होना जरूरी नहीं होता, इंसान का ज़मीर जिंदा होना जरूरी होता है। हमने आपका चैलेंज लिया, आपको वापस जवाब दिया, अब हम इंतजार करेंगे कि आप भी इसी तरीके से जो जो जुल्म किए हैं, पहले जनरल बाजवा ने, अब आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने, जो अल्फाज आप हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप जरा अपनी मर्दानगी जो स्टीरॉइड्स के ऊपर है उसको दिखाइए और बेशरम और बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करके दिखाइए। अगर नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कर सकते, तो फिर आपकी सहाफत जो घुंघरू पहन के इस 2 ताल तबले के ऊपर नाचती है, उसको नाचने दीजिए। फिर ये खामखा भगत सिंह ना बना कीजिए जो आप नहीं हैं, खामखा हर सुराख में उंगली नहीं देते, हर सुराख में से तोते नहीं निकलते, कहीं कहीं शीशनाग भी होते हैं। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि जो काम आप कर रहे हैं वो कीजिए, सबको पता है आप क्या कर रहे हैं। कई दफा लोग सिर्फ अजरा तफन्नन भी चीजों को देखते हैं, आप कई दफा सीरियस ही हो जाते हैं कि लोग शायद आपको वाकई सीरियस जर्नलिस्ट गर्दानते हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देकर जाता हूं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं फिर मैं करूंगा। आपकी बाजी, बल्कि बाजी तो वो मेरी है, आपकी तो मालकन है जिनका पट्टा आपके गले में है, उनकी गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, और वो करप्शन हो रही है सुथरे पंजाब के अंदर, शहरों की सफाई के अंदर। जो एम्प्लॉइज हैं, लोगों को ठेका दिया जा रहा है। आपको मैं पूरा स्कैंडल बता देता हूं, ब्रेक आपने करना है, ये आपको पहले करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। अभी आपको असाइनमेंट देके जा रहा हूं, आप सहाफत करते हैं ना तो आपको सहाफत सिखाते हैं थोड़ी सी। सुथरा पंजाब के अंदर आप ये कर क्या रहे हैं कि पूरे लाहौर में या किसी भी शहर में ये किसी एक बंदे को जिम्मेदार बना देते हैं, ठेकेदार दे देते हैं, ठेका दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि वो तमाम इंप्लॉइज वही प्रोवाइड करेगा। 25,000 रुपए सफाई वाले की तनख्वाह है, 6,000 रुपया वो बंदा ले जाता है बीच में से, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है आपकी तरह का, मैं आपको नहीं कह रहा लेकिन आपकी तरह का। उन बेचारे स्वीपर्स जो खाकरूब हैं उनसे भी 6,000 रुपया वो ठगता है, और 19,000 रुपया उनको देता है महीने का, और उस 19 में से मजीद कटौती टैक्स वैक्स की भी होती है, और बाकी 6,000 उसकी जेब में जाता है। अब आप जरा काउंट कर लीजिए, बड़े शहर में कितने लोग होते हैं और छोटे में कितने। ये अरबों रुपए का खांचा है हर साल, अरबों, कोई 1, 2, 3 अरब नहीं, अरबों रुपए का। और इसमें हमारी इत्तलात ये हैं कि मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमारी इत्तलात ये हैं कि वो डायरेक्टली ये ठेके दे रही हैं लोगों को, डायरेक्टली ये लेबर सप्लाई का ठेका है, पाकिस्तान के मिनिमम वेज से भी कहीं नीचे पैसा दिया जाता है। ये सीधी सीधी कानून की खिलाफवर्जी है, सीधा सीधा स्कैंडल है आपकी, क्योंकि सहाफत 2 ताल तबले पर नाचती है पट्टा पहन के, वरना आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप इससे पहले ये स्टोरी ब्रेक कर चुके होते। हम जो यूनिवर्सिटी बनाई गई राणा आलम साहब की जमीन, वो भी हमने आपको बताया। उसके अलावा भी अब हम आपको याद करवाते रहेंगे बहुत सारे और स्कैंडल जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, और उसके लिए आपको पट्टा उतारना पड़ेगा। लेकिन जो पालतू होते हैं, आप कभी पता नहीं गए हैं कि नहीं, मैं बहरहाल एक दफा सफारी पे गया था तंजानिया, तो वहां मैंने देखा कि जब शेर अपना शिकार खाकर सुस्ता रहा होता है तो हाइनाज आ जाते हैं। आपको पता है वो शेर को भी काटने को पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का मारा हुआ शिकार जो है वो खाना होता है। आपकी सहाफत की, आपको नहीं मैं हाइना कह रहा, मैं ऐसे तो बदतमीजी नहीं करता, आप के अंदर कोई जरासीम है बदतमीजी के, मैं वो काम नहीं करता, तू तकार तुम, ये मुझे जेब नहीं देती कि मैं आपके बारे में, अभी भी आपने गौर किया होगा, आप मेरे मुंह से निकलता है। तो वो जो हाइनाज होते हैं वो शेर को भी पड़ जाते हैं, और ऐसा नहीं होता कि शेर को पड़ जाते हैं, लेकिन शेर थोड़ी देर सोने की कोशिश करता है खाने के बाद, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब वो हाइनाज उसे नहीं सोने देते तो कई दफा शेर उठ के चल पड़ता है, और वो हाइनाज फिर उसके बाद खाते हैं। अंदर से तो वो यही सोचते होते हैं कि हमने शेर मार लिया, हमने शेर मार लिया, लेकिन मतलब कि शेर को भगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से जाता है। तो आप फिलहाल पट्टा पहने रखिए,
मैं वापस आऊंगा, मैं कैमरे में देख के आपको बता रहा हूं, हम वहां पर आपके सामने काम भी करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। ये जो बार बार आप ताने देते हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, आएगा इंशाल्लाह हमारा वक्त जब हम वापस आएंगे। फिलहाल वक्त नहीं है। फिलहाल हमारी जिम्मेदारी यही है कि बाहर से बैठ के आप जैसे पट्टा बरदार जो है उनकी मंजी पीढ़ी मुनासिब तरीके से ठोकी जाए। अब चलते हैं जरा आगे। माजरत ये बहुत ही लंबी हो गई बात, मुझे अंदाजा नहीं था। दिस इज अनदर रीजन कि ये लोग, ये भी एक बात है, हम भी ट्रैप में आ जाते हैं, यही इनका तरीका है। आज के व्लॉग में हमने बहुत सारी बातें करनी थी और ये इसी तरीके से जानबूझ के समाखराशी करके ये हमारा फोकस हटाते हैं कि हम जो असल इश्यूज हैं उन पर बात ना करें। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबर गुल, उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया था वकील मोहम्मद दानियाल ने, अगलों ने उसी को चुक लिया। जी हां, अबर गुल साहबा के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने LLB की जाली डिग्री की है, उनकी डिग्री जाली है, नाम चेंज किया गया, वल्दियत चेंज की गई, रोल नंबर रिजल्ट लेट करके और बहुत सारी और ऐसी हरकतें करके उन्होंने LLB अपना किया। उनका LLB जेन्युइन नहीं है। ये उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ था। हमने आपके सामने एक्सक्लूसिवली वो रेफरेंस रखा भी था और जो उन पर इल्जाम थे वो भी बताए थे। अब वो दाखिल करने वाले वकील मोहम्मद दानियाल को नामालूम अफराद ने उठा लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल रेफरेंस भी गायब हो जाएगा जैसे नामालूम अफराद ने मोहम्मद दानियाल साहब को गायब किया है। दूसरी तरफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जुडिशियल कमीशन का इजलास मुनक्कद किया है और उसमें जस्टिस अबर गुल समेत लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस था, अगलों ने रेफरेंस को देखा भी नहीं, बल्कि जिसने दायर किया था उसी को चुक लिया और साथ उनको मुस्तकिल जज भी बना दिया है। अगलों ने काम ही खत्म कर दिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जरा क्विकली आपको बता दें कि गुल प्लाजा से अभी तक 42 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। फायर फाइटर अमले का इंकशाफ, ये अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब इसके अंदर जाहिर है जले जो लोगों का अरबों रुपए का सामान वहां पर जल गया है। अब आपको जरा ये बता दें कि तारीख क्या है। एक तो ये जनवरी 2026 में गुल प्लाजा में आग लगी है जिसमें अभी तक 42 डेड बॉडीज आ चुकी हैं बाहर। उनका DNA हो रहा है क्योंकि पहचानी नहीं जा रही, वो जल गई हैं सारी। और उसके साथ साथ कम से कम भी 80 के करीब अफराद जो है वो अभी तक गायब हैं, उनका कोई पता नहीं कि वो किधर है। इससे पहले अगर आप देखें तो RJ शॉपिंग मॉल में फायर जो आग लगी नवंबर 2023 में और जानी नुकसान 11 लोग इसमें जाँ बहक हुए थे और 35 के करीब जख्मी हुए थे। 50 से ज्यादा दुकानें जली थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। फिर एम्प्रेस नोमान प्लाजा में आग लगी थी दिसंबर 2024 में, जानी नुकसान 3 हलाक हुए, 2 जख्मी, माली नुकसान करोड़ों रुपए का। फिर चेजअप, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो माजरत, डिपार्टमेंटल स्टोर है और इसमें जून 2022 में आग लगी, जानी नुकसान 1, 3 जख्मी हुए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ यहां भी। फिर मिलेनियम मॉल के अंदर आग लगी जून 2025 में, जानी नुकसान कोई नहीं लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान जो सामान जल गया। क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर, ये फरवरी 2025 में आग लगी, जानी नुकसान कोई नहीं, माली नुकसान करोड़ों रुपए का सामान यहां पर जल गया। फिर रंपा या रिम्पा, अगेन नाम गलत है तो माजरत, प्लाजा, इसमें आग लगी दिसंबर में 2 बार, ये 2024 की बात है, जानी नुकसान कोई नहीं, करोड़ों रुपए का यहां पर भी सामान जो है वो जला। फिर फर्नीचर मार्केट गुलिस्तान जौहर 2024 में, जानी नुकसान कोई नहीं लेकिन करोड़ों रुपए की यहां पर भी मालियत का सामान जो है वो जल गया और दुकानें जल गई। कोऑपरेटिव मार्केट आग लगी 2021-2022 में, जानी नुकसान कोई नहीं लेकिन यहां पर भी करोड़ों रुपए का सामान जो है वो जला। चावला मार्केट आग लगी अक्टूबर 2021 में, जानी नुकसान कोई नहीं, माली नुकसान यहां भी करोड़ों रुपए का हुआ। गुल प्लाजा में पहली बार आग जो है वो 2016 में लगी, इससे भी पहले लगी थी और जानी नुकसान कोई नहीं, माली नुकसान 25 दुकानें जली, करोड़ों रुपए का सामान जो है वो जल गया। अब ये सारी सूरत हाल कराची के अंदर बनी हुई है और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने 52 जी हां, हमारे DGISPR को तो 58 नहीं कहना आता उर्दू में, वो 58 कहते हैं। इसी तरीके से 52 को पंजाबी में 52 कहते हैं लेकिन उर्दू में उसे 52 कहेंगे। 52 DGISPR साहब, गिनती भी आपको सिखानी पड़नी है हमें। 52 जो फायर ब्रिगेड के लिए ट्रक्स हैं वो इमरान खान साहब ने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कराची को दिए थे। एहसान नहीं है कोई भी, लेकिन ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 18वीं तरमीम के बाद परसों जब वहां पर आग बुझाई जा रही थी, परसों या तरसों, तो यही ट्रक जो इमरान खान साहब ने उस वक्त मंगवा कर दिए थे वही काम आ रहे थे। लेकिन ये जितनी बार आग लगी है पिछले चंद सालों में जो हमने आपके सामने रखा, काफी सारा इंतजाम किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया वहां पर। आगे सुन लीजिए, कादर पटेल साहब इसी के ऊपर असेंबली में तकरीर कर रहे थे। ये जरा आपने देखना है साइड पर, बड़ी भारी भरकम किस्म की वो तकरीर कर रहे थे, फट्टे ही उन्होंने चुक दिए थे सारे के सारे। लेकिन अचानक से वहां पर बैठी हुई जो साहबजादी हैं, आप सबको पता है आसफा जरदारी साहबा, उन्होंने एक पर्ची लिख के खुद नहीं दी, शाजिया मरी साहबा गालिबन साथ बैठी हैं उनको पर्ची दी। शाजिया मरी साहबा ने वो पर्ची कादर पटेल साहब को दी। उससे पहले कादर पटेल साहब भी लौंडा लपाड़ा जी की तरह मुंह से थूके निकाल रहे थे और बहुत भारी भरकम बोल रहे थे। जैसे ही पर्ची गई, पर्ची के ऊपर गालिबन ये लिखा था कि अब आप अपनी बकवास बंद करें, माजरत इस लफ्ज़ पर, अब आप अपनी बकवास बंद करें और खामोश होकर बैठ जाएं। पहले तड़ियां लगा रहे थे, रंगबाजी कर रहे थे मुकम्मल लौंडा लपाड़ा जी की तरह। जैसे ही पर्ची पड़ी, उन्होंने अगला जुमला मुंह से ये बोला, अब मैं अपनी तकरीर
तकरीर का इख्तिताम करता हूं और हम सबको मिल बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। और साथ ही भीगी बिल्ली की तरह कादर पटेल नीचे बैठ गए। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। वो छोटी बच्ची हैं, ये वो पार्टी है जो कहती है 18 साल वाले को वोट नहीं डालने देनी। कायरा साहब कह रहे थे, और इनका अपना चेयरमैन 18 या 18.5 साल के थे, बिलावल जरदारी साहब, जब उनको चेयरमैनशिप मिली थी तो 18 साल का चेयरमैन कबूल है, वोटर कबूल नहीं। और इस तरह ये छोटी बच्चियां भी वो पर्ची लिख के इनके बड़े बड़े जो तुरम खान हैं उनको कह देती हैं कि बकवास थोड़ी बंद कर लें और बैठ जाएं, और वो 1 मिनट में भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाते हैं। ये जो पट्टे पहने हुए ना, ये मामला फौरी तौर पर सॉल्व हो जाता है। खबरें और थी जो मैंने करनी थी कवर, लेकिन अब क्विकली मैं जो कुछ हो रहा है वहां पर यूरोप में वो आपके सामने रख दूं। लेकिन उससे पहले ये एक स्क्रीनशॉट, ये हमारे जनरल साहबान ने कल मीडिया को अहकामात दिए हैं, ये आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। ये यूरोप क्रैकडाउन ऑन अफगान स्मगलर्स, ये उन्होंने कहा कि खबर जरूर एयर करें, इसके ऊपर तवज्जो रखें। अब आपने गौर करना ये क्यों हो रहा है, सब कुछ मैं बाद में बताता हूं। एडवाइजरी फॉर चाइनीज सिटीजन्स आफ्टर काबुल ब्लास्ट, इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। ये जो स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं टीवी चैनल्स को आया हुआ है ISPR की तरफ से, और वो फोर्स कर रहे हैं कि ये खबरें रन करें। एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया लिंक टू मोदीज पॉलिटिक्स एक्सपोज्ड। उसके बाद वो कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान मिसलीड्स बलूच यूथ, पाक IT फेस्टिवल एंड्स विद $750 मिलियन इंपैक्ट। माशाल्लाह, इंटरनेट आप चलने नहीं देते, पाकिस्तान जैम किया हुआ है, और IT में आपने तरक्की करनी है, कहीं कर ही ना जाएं आप। अच्छा जी, सेट्स न्यू एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स, टाइमली रेस्क्यू एट लियाकत बाजार, नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। और वो कह रहे हैं कि ये टुडेज पैकेज है, अगर ये एयर नहीं हुआ तो अकोमोडेट करें न्यूज साइकिल के अंदर, मतलब कि ये खबरें रन करें। वजह क्या है, फील्ड मार्शल के ऊपर कोई बात ना करें, गजा का जो अमन मुआहदा साइन करने जा रहे हैं उसका यहां कोई जिक्र नहीं है, डाइवर्जन क्रिएट की हुई है। एक और डाइवर्जन मैं आपको बता दूं चलते चलते क्विकली, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह का व्लॉग है, तो जो ईमान मजारी साहबा है वो हाई कोर्ट के अंदर पनाह लिए हुए। उनके ईमान मजारी और उनके शौहर, उनका क्या कसूर है बेचारों का? वो रूल ऑफ लॉ के लिए बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बोलते हैं, जमहूरियत के लिए बोलते हैं। अच्छा, वो कोई ऐसे वकील भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जूनियर दोस्त हैं वो हमारे, अभी हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन वो सही तरफ खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं लोगों के हकूक के लिए बोलें। अच्छा, अब उन्होंने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया, कोई ऐसे ट्वीट्स भी मैंने देखे, कोई ऐसे नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो फिर ये उनको ये पकड़ने का सारा इन्होंने क्या किया हुआ है, उनको क्यों हरास कर रहे हैं? इन्होंने कोई खास उनको पकड़ना या सजा मेरा नहीं ख्याल देंगे भी तो आप देखेंगे कोर्ट्स उन्हें छोड़ देंगी, और ये कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें अंदर रखना लंबा। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखें ना, कल से सारा मीडिया उस तरफ लगा हुआ है, तो ये उनको तंग कर रहे हैं बेचारों को, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए हमें, उनकी सताइश करनी चाहिए, तहसीन करनी चाहिए। उनको ये तंग कर रहे हैं, कोई इन्होंने उन्हें लंबा अरसा, ये हमारा तजिया हम गलत हो सकते हैं, कोई लंबा अरसा अंदर नहीं रखना, कोई इनका पर्पज नहीं। उनको तंग करना इनका पर्पज है, उनकी तौहीन करना पर्पज है, उन्हें हरास करना पर्पज है, और दूसरा पर्पज डाइवर्जन है। जैसे ये खुद खबरें देते हैं, ऐसे ही ये डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से डाइवर्जन क्रिएट हो और लोग उस चीज के ऊपर बात ना करें, इस वाले मामले के ऊपर बात हो और मामला चलते रहें। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। बात मेरा दिल था करने का, जो सदर ट्रंप वहां पर सीधे ही हो गए, वो अब शाम के व्लॉग में करेंगे, क्योंकि व्लॉग लंबा हो गया। आप में से बहुत सारे लोग फिर गिला करते हैं कि व्लॉग लंबा हो गया, इसलिए मैं यहां से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।